हाँ, इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिप्लेसमेंट ऑफ वन ग्रुप बाय द अनदर ग्रुप, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी क्लासिफाइड इनटू फर्दर इनटू द थ्री टाइप्स लाइक द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। यस सर। हाँ, तो अभी इसमें से देखो which reaction benzene prefer for the substitution reaction. It is always the milder, at a milder condition it prefer the electrophilic substitution reaction, but at a drastic condition means drastic condition क्या रहती है, at a higher temperature or higher pressure or at a in presence of the ultraviolet light it undergo the nucleophilic substitution reaction and free radical substitution reaction, है ना। तो पहले तो हम बात करेंगे when a reaction is carried out at a lower temperature, है ना, जैसा lower that is at a milder condition, है ना, तो it preferably undergo the electrophilic substitution reaction, है ना। तो all the aromatic compound and benzene is nothing but the aromatic compound, और aromatic compound क्या रहता है, all the compound that contain one or more benzene ring or its chemical property similar to that of the benzene ring is aromatic compound, so they prefer or they undergo the electrophilic substitution reaction at a milder condition, है ना। तो जो जब भी हम बात करेंगे बेंजीन हो गया या आपका सेकंड टॉपिक हो गया फिनॉल हो गया, एनिलीन हो गया, फिर उसके बाद में पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लाइक नैप्थलीन, एंथ्रासिन, फिनांथ्रीन, ऑल आर द एरोमेटिक कंपाउंड, है ना, एरोमेटिक कंपाउंड है, ऑल आर द एरोमेटिक कंपाउंड्स, है ना। तो व्हेनेवर वी कॉल्ड एनी कंपाउंड एज अ एरोमेटिक कंपाउंड, तो दैट मे बी कंटेनिंग द बेंजीन रिंग, one or more benzene ring or its chemical property similar to that of the benzene. So that's why this is very important bit or important part. If we concentrating और कभी ये हमको समझ में आता है तो we cover near about 40% of the syllabus of POC2 as well as POC3, है ना, because chemical property of all the aromatic compound is similar to that of the benzene ring. जैसे for example benzene undergo the electrophilic substitution reaction means all the phenol, naphthalene, anthracene, phenanthrene, aniline, उसके बाद में heterocyclic aromatic compound that also undergo the electrophilic aromatic substitution reaction, है ना। Yes sir. That's why it is important part to understand the mechanism and reaction of the electrophilic aromatic substitution reaction. तो कल हमने देखा था, ये तो वही बताया, electrophilic aromatic substitution reaction also stand for the EARS, that is electrophilic aromatic substitution reaction, है ना। तो these are the few example of the specific electrophilic aromatic substitution like the halogenation reaction, nitration reaction, sulfonation reaction, है ना। Halogenation is nothing but the substitution of the hydrogen atom by the halogen group, various halogen group like the chlorine, bromine, iodine and fluorine. फिर उसके बाद में नाइट्रेशन रिएक्शन इज नथिंग बट द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय द NO2 ग्रुप, है ना। और सल्फोनेशन क्या रहता है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय द सल्फोनिल ग्रुप दैट इज SO3H, है ना। अगेन द फ्रीडल क्राफ्ट alkylation is the replacement of hydrogen atom by the alkyl group, and Friedel Crafts acylation is nothing but the replacement of hydrogen atom by the acyl group, है ना। So means this 5 specific reaction, that is electrophilic aromatic substitution reaction shown by the benzene, the same kind of reaction shown by all the aromatic compound. Whenever we call as the so one is the aromatic compound, means the same compound show these 5 type of a reaction, that is halogenation, nitration, sulfonation, Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation, along with the different reaction and depending on structure to structure. समझ में आ गया आपको? These are the chemical property of benzene. Few chemical property of benzene means if benzene show this reaction, definitely the any compound with the call that one is aromatic, that also show the same type of or same kind of reaction, that is a halogenation, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन. फॉर एग्जांपल मैंने बात की, आपको कोई क्वेश्चन रहता है जस्ट राइट अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, तो फिनॉल की कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी आप डिस्कस करेंगे उसमें? एसिडिक. yes? नहीं एसिडिक तो है इसकी, एसिडिक तो मैं बोला हूं ना आपको. फिनॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल फिनॉल इज द एरोमेटिक कंपाउंड, है ना. यस. तो डेफिनेटली इट्स केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द बेंजीन.
even phenol itself containing the benzene ring, means whatever the property, chemical property shown by the benzene, same chemical property, near to the same chemical property shown by the phenol, है ना. तो phenol also undergo the halogenation reaction, nitration reaction, sulfonation reaction, Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation. Is that correct? Yes, sir. Yes. हाँ, तो वही बात आप Yes, समझ sir. लो. जैसा मैं अब ये रिएक्शन जब हम बात करेंगे ना, तो whenever we called any aromatic compound, that aromatic compound also say show the same kind of reaction. Means अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं बेंजीन की, but phenol also undergoing the same reaction, aniline also undergoing the same reaction, naphthalene, anthracene, phenanthrene, उसके बाद में pyrrole, furan, thiophenes, indole, pyridine, जो भी aromatic compound हम डिस्कस करेंगे further in our syllabus, तो same that show the same kind of reaction, that is electrophilic aromatic substitution reaction. For that और उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस रहेंगे डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर, है ना. यस Yes, sir. हाँ, तो फॉर दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. What happen whenever we refer the reference book, so it found that they discussed the electrophilic aromatic substitution reaction under the two steps. In that, the first step is the electrophilic attack to the aromatic system and formation of an intermediate, that is carbocation, है ना. First step में क्या हो रहा है? Formation of carbocation. Formation of carbocation. But during the formation of carbocation, what happened? Addition of electrophile. Addition of electrophile, but what happened? sp2 hybridized carbon atom converted to the sp3 hybridization. और aromaticity क्या हो रही है यहाँ पे? Loss हो रही है for a moment. समझ में आ रहा है आपको? Yes. But still, if it lost the aromaticity, but formation of a resulting carbocation is stabilized by the resonance, है ना. देखो यहाँ पर the addition of the electrophile to the aromatic system, formation of a new sigma covalent bond between a carbon atom and electrophile, है ना. ये जो आपको दिख रहा है वहाँ पे लाइटर दिख रहा है ना. तो यहाँ पर क्या रहा है? एरोमेटिसिटी लॉस हो रही है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम कन्वर्टेड टू द sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3. और दैट्स व्हाई दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. स्लो स्टेप है, क्योंकि क्यों स्लो स्टेप क्यों है यहाँ पर? बिकॉज इट लॉस द एरोमेटिसिटी फॉर अ मोमेंट, but still it lost the aromaticity, but formation of a corresponding species also exists the resonance. That's why some sort of the stability to the carbocation, है ना. इसके पहले हमने फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया था, anything or any compound that exists the resonance is more stable compared to the compound that not show the resonance, है ना. तो ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, ये that undergo the resonance. और रेजोनेंस में एक पॉइंट हमको क्या करना है, मैं क्या resonance is always, or that is positive charge is always delocalized to the ortho and para position with respect to the new form CE bond, है ना. जो CE bond जो फॉर्म हो रहा है नया, तो उसके ना रिस्पेक्टिव में अर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है. जैसे देखो यहाँ पे अर्थो पे हो रहा है ना, इसके रिस्पेक्ट में. सेम यहाँ पर भी अर्थो पे डीलोकलाइज हो रहा है, और यहाँ पर पैरा पे डीलोकलाइज हो रहा है. समझ में आ रहा है? हेलो. Yes, sir. हाँ, तो while we drawing the resonating structure or while we writing the resonating structure of an intermediate carbocation, it is always remember that the positive charge is always delocalized on ortho and para position with respect to the new bond formed between a carbon atom and electrophile, है ना. तो आपको क्या रहेगा? It is easy to draw, or it is easy to draw the resonating structure of a corresponding इंटरमीडिएट, है ना. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. और सेकंड स्टेप में क्या होता है? एरोमेटिसिटी रिगेन होती है, एरोमेटिसिटी रिस्टोर होती है. और एरोमेटिसिटी रिस्टोर कैसी होंगी? व्हेन अ बेस दैट एक्सट्रैक्ट द प्रोटॉन that is available on a carbon atom that form the bond with a electrophile, है ना.
तो यहाँ पर बेस क्या करता है, ये हाइड्रोजन एटम को एब्स्ट्रैक्ट करता है। एब्स्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, वहां पर वो एज अ प्रोटॉन, और प्रोटॉन इज इलेक्ट्रोफाइल, तो जो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है तो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिटेन रहती है कार्बन एटम की, तो दैट electron pair utilized to form a new sigma, that is new pi bond between these two carbon atom. That's why it restore the aromaticity and formation of a corresponding substituted product. Getting you? समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। हाँ, तो दिस इज केस विद द रेफरेंस बुक, है ना। हम कभी रेफरेंस बुक रेफर करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डिस्कस इन हाउ मेनी स्टेप्स, in 2 steps. But when we refer the local book like the Bhal and Bhal hai, then Sachin Ghosh hai, so if we refer this book, in that the electrophilic aromatic substitution reaction is discussed in the 3 steps. उसमें क्या बोला है, जैसा देखो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप आपको दिख रहा है, नजर आ रही है यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो हो रही है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो रहा है ऑलरेडी, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल जनरेटिंग बता रहे हैं। बट इन मेनी रेफरेंस इन लोकल बुक दिस स्टेप इज आल्सो काउंटेड एज अ फर्स्ट स्टेप, है ना। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है यहाँ पर, हाँ फर्स्ट स्टेप देखिए यहाँ पे, फिर हम फर्स्ट स्टेप ड्रॉ कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिसिटी इज इंक्रीजेस, है ना। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करते हैं। When a reagent is treated with a Lewis acid, नजर आ रहा है आपको, EA क्या है, ये reagent है। When it treat with a Lewis acid के साथ कभी हम इसको ट्रीट करते हैं, Lewis acid is nothing but the that accept the electron pair, तो ये क्या करता है, इसको हेटेरोलाइटिकली ब्रेक करता है। यहाँ पे इसको A को क्या करेंगे, एब्सॉर्ब करेंगे एज अ विद इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट्स व्हाई गिविंग द कट करनी गाने थे भाई, नहीं गुनी देना। यहाँ पर क्या जनरेट हो रहा है, है ना, जनरेट हो गया यहाँ पर। आ रहा है आपको, देखो आपके स्क्रीन पर फर्स्ट स्टेप में देखो दिख रहा है, क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक जनरेशन, है ना। तो इन मेनी लोकल बुक्स द फर्स्ट स्टेप इज जस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, है ना, और इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रोफिलिसिटी, है ना। Have you remember the aldol condensation reaction? Yes. Hello. Hello. आती है? यस सर। बोलना। हाँ, तो इन दैट द फर्स्ट स्टेप क्या रहती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है। देन न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होने के, इफ इट इज ट्रीटेड विद एसिड और बेस, तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है। नाउ दिस न्यूक्लियोफिल अटैक टू द कार्बोनिल कंपाउंड, तो हियर आल्सो द सेम टाइप ऑफ रिएक्शन ऑकर। व्हाट हैपन, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे व्हाइल ट्रीटेड विद लुईस एसिड, है ना। इलेक्ट्रोफिलिसिटी कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, ट्रीटेड विद लुईस एसिड। इफ यू ट्रीट विद लुईस एसिड तो व्हाट हैपन, स्क्रीन नजर आ रही है ना आप लोगों को? नो सर। No, No, sir. sir. नो सर। स्क्रीन नहीं आ रही है, आपकी फोटो दिखो। एक अभी आ रही है नजर आप लोगों को? Yes. यस सर।
Yes, sir. तो ये समझ में आपको डिफरेंस का मैकेनिज्म का क्या है? व्हेनेवर वी रेफर द स्टैंडर्ड बुक, डोंट कंफ्यूज विद स्टैंडर्ड एंड रेफरेंस बुक, है ना? तो हम जब हम है ना, यूजुअली वी डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना? हाँ, तो दिस इज द सेकंड थर्ड स्टेप, है ना? ये समझ में आ गया सभी को? हेलो हेलो। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो ये जो कुछ पॉइंट है, यू शुड रिमेम्बर द, यू शुड रिप्रेजेंट द हाइड्रोजन एटम, अदरवाइज क्या हो जाता है, हम भूल जाते हैं। इसलिए व्हाइल ड्राइंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यू शुड रिप्रेजेंट द हाइड्रोजन एटम टू विच द न्यू इलेक्ट्रोफाइल अटैच, है ना? तो नेट रिजल्ट क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का? सब्स्टिट्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल फॉर द प्रोटॉन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय द इलेक्ट्रोफाइल, है ना? तो जस्ट वी सी द वन बाय वन रिएक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन दैट द फर्स्ट वन इज एरोमेटिक हेलोजिनेशन, है ना? हेलोजिनेशन दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो हेलोजिनेशन में हमने कल क्या डिस्कस किया था? ब्रोमिनेशन किया था। व्हाट हैपन इन द ब्रोमिनेशन रिएक्शन? Hydrogen ion replaced by bromine. हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय द ब्रोमीन, है ना? Bromine. यस। Just wait for a minute. So what happen when we treat so this is the benzene ring, है ना? When benzene ring is treated with a bromine in presence of Lewis acid like AlCl3 or FeBr3, है ना? तो what happen? Formation of a corresponding bromobenzene, है ना? Now we will discuss the chlorination. Chlorination बोला था कल मैंने, तो आपने देखा, उसको ट्राई किया? यस? Yes, sir. तो क्या होता है फर्स्ट स्टेप में? क्या होता है क्लोरीनेशन? द क्लोरीन फर्स्ट स्टेप इज द इलेक्ट्रोफिलिक जनरेशन. व्हाट हैपन व्हेन क्लोरीन इज treated with the AlCl3, AlCl3, तो it give the chlorine Cl plus AlCl4 plus minus. हाँ, AlCl4 4 minus. माइनस, वेरी गुड, है ना? तो यहाँ पे देखो हमारा क्या फॉर्म हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, है ना? Now this electrophile undergo the electrophilic substitution reaction because
it is electron deficient species, it approaches to the electron rich species, that is a benzene ring, है ना. ये क्या करता है फिर इसको बेंजीन को अप्रोच होता है यहाँ पे. तो फर्स्ट ये दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक जनरेशन रिएक्शन, है ना. नाउ द सेकंड स्टेप में क्या होता है? सेकंड स्टेप इज द formation of a new covalent bond between electrophile and carbon atom. During what? During that the pi bond break and both the electron pair transfer to one of the carbon atom. तो यहाँ पे point you should note that this chlorine atom, this is an electrophile attack to any one of the carbon atom, because all the carbon atom in a benzene is unique. समझ में आ रहा है आपको? All the carbon atom in a benzene ring is uniform. अलग अलग है क्या कोई वो? No, sir. So that's why this chlorine atom may be attacked to this carbon atom, may be attacked to this carbon atom, may be attacked to this carbon atom, or this carbon atom, or may be attacked to this carbon atom. Means the chlorine atom may be attacked to any one of the carbon atom. So this is the first step. Now we will discuss the second step. Second step में क्या होता है? What happened in second step? So whatever the formation of the chlorine group approaches to the benzene ring. Approaches to the benzene ring. जैसे ये अप्रोच होगा तो क्या होगा? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ पाई बॉन्ड, पाई ब्रिज और बॉन्ड ब्रिज बिटवीन अ कार्बन एटम एंड क्लोरीन ग्रुप. फॉर दैट द मोमेंटरीली दिस पाई बॉन्ड ब्रेक एंड इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर टू दिस carbon atom. That's this carbon atom getting the partial negative charge and this carbon atom getting the partial positive charge, है ना. When there is a formation of a firm bond between a carbon atom of a benzene ring and chlorine group, तो क्या हो रहा है फिर? then this is a complete formation of a sorry और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, है ना. तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ अ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन. नाउ दिस कार्बोकैटायन अंडरगो द रेजोनेंस. रेजोनेंस में क्या होता है? यहाँ पर दिस इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर टू हियर, है ना. तो फिर यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा? when this transfer this pi electron to this carbon atom and this carbon atom, to this carbon atom getting the positive charge. This is the second resonating structure, है ना. next instant में क्या होता है? this pi bond is transferred from this to this delocalization. That's why this carbon atom getting the positive charge. और यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप रहेगा वहां पर, है ना. ये समझ में आ गया आपको? सेकंड स्टेप क्या है? तो यस, हेलो Yes, sir. हेलो. हाँ, सेकंड स्टेप समझ में आ गया फिर सभी को. नाउ थर्ड स्टेप में क्या होता है फिर? देखो हमने ना सभी में हाइड्रोजन नहीं बताया क्योंकि मैं मोबाइल पे ऑपरेट कर रहा हूँ ना, तो उसमें उतना मुझे ऑपरेट नहीं हो रहा है, जम रहा है उतना. नाउ बेस, जो बेस प्रीवियसली फॉर्म हो रहा है AlCl4, that abstract this hydrogen atom and the electron pair utilized to form a pi bond between these two carbon atom. और क्या हो रहा है? एरोमेटिसिटी क्या हो रहा है? यहाँ पे से रिस्टोर हो रही है ना. है ना. समझ में आ गया आपको?
हेलो Yes, हेलो। sir. हाँ, ये मैकेनिज्म समझ में आ गया आपको फिर ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन का? हेलो। Yes, sir. हाँ, बट व्हाट इज द केस विथ व्हाट द केस विथ what the case with iodine and fluorine? Yes, what the case with fluorine and iodine? ये देखो, जब हमें ना इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन दैट ऑफ द क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, है ना? Yes, sir. हाँ, ये देखो यहाँ पर मैं if you compare the electrophilicity of fluorine more, आपको आप सुन रहे हैं ना? आपको सुने आ रहा है आप लोगों को सभी को? Yes, sir. हाँ, electrophilicity of fluorine is more than that of the chlorine, bromine and iodine. Iodine is least electrophile, है ना? That's why the fluorine is violently react. Again, the fluorination is the exothermic reaction. Heat is evolved, or iodination is the highly endothermic reaction. Too much oxidizing agent and drastic condition is required for the iodination, है ना? That's why the fluorination, iodination is not पॉसिबल एट अ माइल्डर कंडीशन, है ना? तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हमें ना फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन बना ही नहीं सकते हैं, ऐसा है कि फिर पॉसिबल? नहीं. Still we in a condition to prepare the iodobenzene and fluorobenzene, but it required the special type of a reagent. For example, the fluorination के लिए हमको क्या लगेगा? fluorination के लिए लगेगा हमको fluorinating reagent लगेंगे. For that we require the fluorinating reagent. That's why we use for that the N-fluorobenzene disulfonate. These are the fluorinating agent. When we treat this reagent with a benzene, that give the corresponding fluorobenzene. Otherwise हम fluorobenzene कैसे prepare कर सकते हैं? डाइजोनियम, फिनिल डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ा आपने लास्ट ईयर? यस, Yes, sir. Yes, sir. तो उसमें जो डाइजोनियम सॉल्ट क्या रहता है? डाइजोनियम कंपाउंड इज नथिंग बट द compound that containing the nitrogen double bond. So same kind of compound when we treat with the fluoroboric acid, that is HbF4, तो क्या हो रहा है वहां पे? that replace the N2Cl group by the fluorine. That the result is the formation of a corresponding फ्लोरोबेंजीन. तो समझ में आ रहा है? ये एक मेथड समझ में आ गया आपको फ्लोरोबेंजीन का कैसा है? तो Yes. ये देखो, ये देखो, if we are interested to synthesize the fluorobenzene, so this is the highly exothermic reaction. That's why this reaction is instead of required the specialized equipment and condition, है ना? So to avoid the explosion or hazards, we are carried out the fluorination in presence of the fluorinating agent. तो fluorinating agent कौन सा है? Just note down, ये note down कर लो. When we treat the benzene with the fluorinating agent कौन सा है? यहाँ पर देखो मैं draw कर रहा हूँ यहाँ पे N-fluoroorthobenzene disulfonamide, है ना? या कौन सा है? N-fluorobenzyl sulfonamide, है ना? जैसा देख लो, ये एक रिएजेंट है ना? When this reagent treated with benzene, that give the corresponding fluorobenzene मिल जाएंगे हमको, है ना? फ्लोरोबेंजीन क्या हो जाएंगे यहाँ पर? फ्लोरोबेंजीन मिल जाए. ये ड्रॉ कर लिया, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया आपने? ये Yes, sir. what is the name of this compound?
एन फ्लोरोबेंजीन सल्फोनामाइड, एन फ्लोरोबेंजीन सल्फोनामाइड, है ना। एन नाइट्रोजन को क्या अटैच है, सॉरी नाइट्रोजन को क्या अटैच है यहाँ पे, फ्लोरीन है, दैट्स व्हाई द एन फ्लोरो, फिर बेंजीन, यहाँ पर ये बेंजीन को क्या अटैच है, सल्फोनामाइड, दैट इज एन फ्लोरोबेंजीन सल्फोनामाइड, है ना। तो व्हेन ट्रीट विद दिस बेंजीन, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे जो फ्लोरीन ग्रुप है दैट अटैच टू द बेंजीन रिंग, है ना, जैसे फिर दैट द रिजल्ट इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ करस्पॉन्डिंग फ्लोरोबेंजीन, है ना। अगेन इन केस ऑफ द आयोडीनेशन, आयोडीनेशन में तो क्या रहता है पता है कि आपको, जब व्हेनेवर जैसी आयोडीन फॉर्म होता है तो आयोडीन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अ करस्पॉन्डिंग HI, जैसे देखो HCl क्लोरीन इज ट्रीटेड विद अ बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ द लुईस एसिड, तो बाय प्रोडक्ट क्या रहता है, कैटलिस्ट, अगेन रिफॉर्मेशन ऑफ द कैटलिस्ट और HCl फॉर्म होता है। तो इन द सेम वे जो HI एसिड फॉर्म होता है, फॉर एग्जांपल इफ यू कैरीड आउट द रिएक्शन ऑफ आयोडीन, if we carried out the iodination हम कभी carried out करते हैं in presence of the iodine, in presence of like the aluminium chloride, है ना। तो क्या होता है यहाँ पे, ये रिजल्टिंग फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, ये कंपाउंड फॉर्म होगा आयोडीनेशन इफ कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ द बेंजीन ट्रीटेड विद आयोडीन एंड प्रेजेंस ऑफ द लुईस एसिड, तो फॉर्मेशन ऑफ अ करस्पॉन्डिंग आयोडोबेंजीन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड, ये फॉर्म हो रहा है। बट दिस हाइड्रोजन आयोडाइड इज द रिड्यूसिंग एजेंट, ये इसको क्या करता है, रिड्यूस होता है, एंड अगेन फॉर्मेशन ऑफ अ करस्पॉन्डिंग बेंजीन, तो ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। टू अवॉइड दिस रिवर्सिबिलिटी वी आर कैरीड आउट दिस रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रिक एसिड HNO3, तो ये नाइट्रिक एसिड क्या करता है, इसको रिड्यूस कर देता है ना, ये नाइट्रिक एसिड को, दैट्स व्हाई द वी रिएक्शन कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रिक एसिड, या अदरवाइज इसको, ये रिएक्शन को क्या करता है, कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ द आयोडीन मोनोक्लोराइड, इसको आयोडीन मोनोक्लोराइड के साथ में भी ट्रीट करने के बाद में क्या मिल जाता है यहाँ पे हमको, है ना। समझ में आया आपको, आयोडीनेशन, फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, ये तीनों भी रिएक्शन समझ में आए आप लोगों को, हेलो। Yes, sir. हाँ, so generally the chlorination and bromination is carried out in presence of the Lewis acid, but special kind of reaction and special kind of condition is required for the fluorination and iodination. What is the reason behind that? Fluorination is the fluorination of benzene is highly exothermic reaction, that's why it required the special equipment and special reagent, है ना। That's why to avoid this condition we use the fluoroboric acid in case if we interested to prepare the fluorobenzene that prepared from the dibenzene diazonium benzene से prepare करता है, या अदरवाइज सेम कंपाउंड से prepare करना है हमको तो फ्लोरिनेटिंग एजेंट लगता है हमको, क्या लगता है, N-फ्लोरोबेंजीन डाइसल्फोनामाइड, है ना, डाइबेंजीन सल्फोनामाइड, है ना। और हाँ, सर ये वाली रिएक्शन समझाइए ना एक बार। कौन सी, आयोडीनेशन की, हाँ ये स्क्रीन पे दिख रही वो ICL। हाँ ICL ये क्या रहता है, ये आयोडीन क्लोराइड है, ये क्या है, आयोडीन मोनोक्लोराइड है, कौन सा है ये, आयोडीन मोनोक्लोराइड। व्हेन ट्रीट द बेंजीन विद आयोडीन मोनोक्लोराइड, तो क्या फॉर्म हो रहा है वहां पे, आयोडोबेंजीन फॉर्म हो रहा है वहां पर, दैट गिव द करस्पॉन्डिंग आयोडोबेंजीन। और बाय प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है वहां पे, HCl फॉर्म हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये समझ में आया आप लोगों को, हेलो। Yes, sir.
इसमें क्या रहता है, ये आयोडीन है ना, इट इज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपेयर टू दैट ऑफ द आयोडीन क्लोराइड, है ना, ये क्या है, ये आयोडीन, दैट्स व्हाई दिस अंडरगोइंग द हेटेरोलाइटिक ब्रेकेज, और हेटेरोलाइटिक ब्रेकेज होकर क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल आयोडीन, है ना। नाउ दिस इलेक्ट्रोफिलिक आयोडीन इज ट्रांसफर टू हियर, और ये जो क्लोरीन एटम है, ये क्लोरीन क्या हो रहा है, इसका जो हाइड्रोजन एटम यहाँ पे फॉर्म होता है, तो अप्रोचेस एंड फॉर्मेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग HCl, है ना। तो ये समझ में आ गया सभी को। फिर आयोडीनेशन और फ्लोरिनेशन, जिसको जो प्रॉब्लम था, हाउ द आयोडीन मोनोक्लोराइड इज ट्रीटेड विद बेंजीन गिविंग द आयोडो बेंजीन, है ना। Yes, yes. क्लोरिनेशन का, है ना। तो इफ यू सी द commercial, there are the lot of importance of the halogenation reaction. For example, आपके देखो स्क्रीन पर दिख रहा है bupropion, है ना, this is the antidepressant drug. It is also reduce the nicotinic cravings, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो ये यहाँ पर देखो, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है, आपको स्क्रीन, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो जो अभी अपने रिएक्शन पढ़ा है, क्लोरीनेशन हो गया, फ्लोरिनेशन होगा, आयोडीनेशन हो गया, ब्रोमिनेशन, तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस इन अ फार्मास्यूटिकल फील्ड, विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन वी कैन सिंथेसाइज द n नंबर ऑफ द इंपॉर्टेंट ड्रग। जैसा देखो, आपने देखो अभी फिलहाल तो क्या चल रहा है, कोविड चालू है, तो देखो जो वो एंटीटसिव ड्रग लिया होगा आपने, एंटीटसिव, या इसके बाद में कोल्ड रिलीफ सिरप रहता होगा, या कोल्ड रिलीफ जो टैबलेट्स रहती होंगी, तो उसमें आपने पढ़ा होगा क्लोरमफेनिरामाइन, नाम पढ़ा है क्लोरोफिनेरामाइन, यस, Yes, sir. एंटीहिस्टामिनिक ड्रग रहता है ना, जो रिनाइटिस में यूज होता है, रिनाइटिस जो फ्री फ्लो वाटरी नोज में जब यूज करते हैं इसको, तो द सेम ड्रग इज सिंथेसाइज्ड बाय द हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे जो एरोमेटिक रिंग, ये क्या है, ये दिस इज द बेंजीन रिंग, दिस इज द बेंजीन रिंग। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसको क्लोरीन ग्रुप से क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दैट गिव द करस्पॉन्डिंग क्लोरोफिनिरामाइन। दिस इज टू highly important drug or more familiar drug that used in a antitussive tablet or preparation like the chlorpheniramine, है ना। उसके बाद में this reaction also used to synthesize the 2,4 dichlorophenoxyacetic acid, that is a herbicide, and also used to prepare the 2,4,5 trichlorophenoxyacetic acid, that is a हर्बिसाइड, है ना, जो पेस्टिसाइड बोलकर यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, है ना। The next reaction is the nitration and sulfonation. These are the two different reaction of the electrophilic aromatic substitution reaction, nitration and sulfonation. Nitration से जैसे हमको क्या पता चलता है, nitration means what? Yes, प्रसाद खोलगड़े, प्रसाद खोलगड़े है, यस, ऋषिकेश, मुक्तेश्वर है प्रेजेंट, मुक्तेश्वर है कि मुक्तेश्वर, पूनम, पूनम निकम है, यस, पूनम निकम, Yes, sir. हाँ बोलिए, नाइट्रेशन, व्हाट इज नाइट्रेशन? Hydrogen is replaced by the nitrogen NO2. नाइट्रो ग्रुप। तो how will this reaction is proceed? This reaction proceed in presence of the concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid, H2SO4. तो H2SO4, है ना। तो in that what happen, it replace the hydrogen atom by the NO2 group, है ना, NO2. सल्फोन, हाँ NO2 ग्रुप, है ना। तो देखेंगे इसको रिएक्शन को कैसी प्रोसीड होती है। तो if you see the mechanism, what happen, the first step is the electrophilic generation. इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हो रहा है यहाँ पर, देखो, when we treat the concentrated nitric acid with the concentrated sulfuric acid, है ना, तो हमको सभी को पता है
क्या है द सल्फ्यूरिक एसिड दैट लॉस द सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड। तो ये क्या होता है, यहाँ पर से जस्ट डोनेट द हाइड्रोजन एटम, लॉस द हाइड्रोजन एटम, है ना, हाइड्रोजन एटम लॉस हो रहा है, तो दैट इज दिस हाइड्रोजन एटम नाउ अप्रोचेस टू द ऑक्सीजन एटम ऑफ अ नाइट्रोजन एटम, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड फॉर्म हो रहा है, प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड होता है। हियर इट लॉस द वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ अ करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रो ग्रुप, है ना। नाइट्रो ग्रुप कौन सा फॉर्म हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रो ग्रुप फॉर्म हो रहा है। और ये क्या है, लुईस स्ट्रक्चर, दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर, पॉजिटिव चार्ज on a nitrogen atom. Once the formation of electrophile, this electrophile approaches to the electron reach benzene ring। जैसा देखो यहाँ पे सेकंड स्टेप में, नाउ देखो सेकंड स्टेप मैकेनिज्म में क्या होता है, जो प्रीवियसली फॉर्म नाइट्रो ग्रुप होता है that approaches to the benzene ring, है ना। Here what happen, momentarily this pi bond break and both the electron is transferred to this carbon atom, है ना। At the same time nitro group form the sigma covalent bond with this carbon atom, and now this carbon atom getting the positive charge, this formation of a intermediate carbocation. Now this intermediate carbocation undergo the resonance. How many resonating structure is possible with this, कितने resonating structure possible है यहाँ पर, 3, है ना। Yes, एक तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, फिर सेकंड कंडीशन में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और थर्ड कंडीशन में डबल से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो Yes. कोई इंटरेस्टेड है ड्रॉ करने में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे कोई, यस एनीवन, यस। चलो मैं ही ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ, जरूरत है शो करने की इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यस। Yes, sir. ये देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक होके क्या हो रहा है, यहाँ पर NO2 ग्रुप, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू हियर, तो ये क्या मिल रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑलवेज शोन बाय द डबल हेडेड एरो। ये डबल हेडेड एरो है ना, आपको शो करना पड़ता है, दैट इंडिकेट द, अभी देखो मैं हाइड्रोजन एटम नहीं ड्रॉ करूंगा क्योंकि इतना ना स्पेस ही नहीं है मेरे पास में। ये एक सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, ये थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डीलोकलाइज हो रहा है, तो दैट गेटिंग द पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो ये दिस इज द थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। थ्री रेजोनेटिंग पैरा पोजिशन, है ना। आया समझ में ये आपको, आया समझ में सभी को, Yes, sir. यस। Yes. तो वही बता रहा है। तो इसमें क्या है इम्पोर्टेंट, हमको है ना फर्स्ट स्टेप है ना,
जो इलेक्ट्रोफिलिक जनरेशन है ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, हाउ द डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल इज जनरेटेड, है ना. अदरवाइज द सेकंड एंड थर्ड स्टेप आर सेम फॉर ऑल द हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट acylation. It is important to first step how the electrophile generated in case of the chlorination, in case of the bromination, in case of the iodination, fluorination, nitration or sulfonation, फ्रीडल क्राफ्ट acylation and फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन. ये सभी रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है, हाउ द इलेक्ट्रोफाइल इज जनरेटेड. वंस द इलेक्ट्रोफाइल जनरेट तो फिर बाकी के दो स्टेप्स है, दैट इज द कार्बोकैटायन फॉर्मेशन एंड थर्ड स्टेप इज द base extract the proton and regeneration or restore the aromaticity. तो ये all these are the same, है ना. तो हम है ना देखो सल्फोनेशन की बस फर्स्ट स्टेप देखेंगे. व्हेन सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो सल्फोनेशन इज आल्सो कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ द सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक concentrated sulfuric acid or fuming sulfuric acid for a long time. It give the benzene sulfonic acid, है ना. आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? Yes, sir. हाँ, तो ये फर्स्ट स्टेप है सल्फोनेशन की. सल्फोनेशन में क्या हो रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड को क्या हो रहा है, प्रोटोनेट हो रहा है. प्रोटॉन किधर से आ रहा है हमको, सल्फ्यूरिक एसिड से. तो फॉर्मेशन ऑफ अ करस्पॉन्डिंग सल्फोनिल ग्रुप, है ना, इलेक्ट्रोफाइलिक सल्फोनिल ग्रुप. नाउ दिस सल्फोनिल ग्रुप अटैक टू द बेंजीन रिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ अ करस्पॉन्डिंग बेंजीन सल्फोनिक एसिड, है ना. ये फॉर्म हो जा रहा है वहां पे, है ना. इसका मैकेनिज्म जस्ट ट्राई द मैकेनिज्म. कभी नहीं आता है तो फिर पूछो मुझे. राइट योर ओन मैकेनिज्म ऑफ अ सल्फोनेशन. ट्राई कर रहे हैं आप लोग? Yes, sir. नहीं आता है तो फिर पूछो मुझे. लिखा? देखो स्क्रीन पे आपके नजर आ रहा है अभी मैकेनिज्म ऑफ अ सल्फोनेशन, है ना. फर्स्ट स्टेप इज द जनरेशन ऑफ अ इलेक्ट्रोफाइल. व्हाट हैपन हियर, द सल्फोनिल ग्रुप that the sulfur trioxide accept the hydrogen atom and formation of a corresponding electrophile, है ना. और ये जो क्या फॉर्म हो रहा है, बेस फॉर्म हो रहा है ना, लुईस बेस फॉर्म हो रहा है. फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप में क्या होता है, द व्हाटएवर द फॉर्मेशन ऑफ अ this group SO3H that react as an electrophile with a benzene ring to form a carbocation, है ना. this carbocation undergo the resonance. कौन कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं. और थर्ड स्टेप में क्या होता है यहाँ पे,
the base abstract the hydrogen atom and restore the aromaticity, है ना? आया ऐसे ही मैकेनिज्म आपका लिखा आपने? यस हेलो हेलो Yes, sir. तो मैकेनिज्म समझ में आया आप सभी को? Yes, sir. हाँ, in next lecture we discuss the Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation and limitation of the Friedel-Crafts alkylation, है ना? कुछ नहीं समझ में आया है तो पर्सनल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप मुझे, या अभी कुछ है डिफिकल्टी तो पूछ सकते हैं। अभी कुछ दो तीन रिएक्शन देखा हमने आज, दैट इज नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन और फ्लोरीन एंड आयोडीनेशन, है ना? तो है कुछ डिफिकल्टी आज के लेक्चर में? यस Sir, resonating structures. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मैं क्या करता हूँ पर्सनली, यहाँ पर है ना एक वीडियो बना के ना आपको शेयर करता हूँ व्हाट्सएप पे बेटर वे, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे जब हमें ना पेंट में ड्रॉ कर रहे हैं ना तो वो कर्सर पकड़ रहा है छोड़ रहा है, तो बेटर वे मैं क्या करता हूँ उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करने का एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको शेयर करता हूँ व्हाट्सएप पे, चलेगा? Okay, sir. हाँ उस देख लेना उसको फिर आप लोग। ठीक। Sir. ओके, थैंक यू।